Right, Ji, Assalamu alaikum. My name is Shayan Tahir, and I'm the founder CEO for Home Shopping. Home Shopping is a horizontal e-commerce marketplace in Pakistan, which has been operating in Pakistan for the last 12 years. We were one of the earliest e-commerce to get started off in Pakistan, and it's been a great journey so far. The industry is growing, so yeah, looking forward and speaking with you on this one. Okay. So, Shan, my first question is how you started homeshopping.pk and what was your motivation when you started it? I guess you have started in very young age, I guess at age of 21. So for me, yeah, I think it was more of a personal thing that happened, and then due to that, I felt okay, we should have a service like this. So I was trying to buy some product जो पाकिस्तान में available नहीं था, just like a lot of other products, and I could find them on an international website, which was Amazon. So I felt कि एक तो उस product का access नहीं है और पाकिस्तान में बहुत सारे products का access नहीं होता, तो why is that how it is, and दूसरा e-commerce के कोई stores ही नहीं थे, like I was trying to search online for this product, तो हमें कोई stores नहीं मिले. So I think when you are in that age, being a teenager, आपको काफी सारे ideas जो है आते रहते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं. So this was just one of those ideas which came, but it felt very different because as I started thinking about this idea, I felt right about this idea. I felt this is the opportunity that I want to take up and pursue for the rest of my life. That's great. I felt passionate about it. और ई-कॉमर्स की फिर एक जर्नी स्टार्ट हुई. उस टाइम पे ई-कॉमर्स pretty much था ही नहीं पाकिस्तान में. So जी बिल्कुल हम ऐसे ही. लोगों ने फिर इसको जो है काफी पैशनेटली परस्यू किया, ग्रो किया, एंड इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी सो फार. So you started in 2009, I guess 2008 or 2009. जी, this was 2007 where I started working on few concepts around it. कुछ क्लासिफाइड वेबसाइट्स पे बेचा, इधर उधर आइडिया लिया था ट्रेडिंग के बारे में. फिर 2008 में लॉन्च करी होम शॉपिंग. Okay, okay. Okay, so Shayan, as you started in very young age, तो आपका सबसे ज़्यादा biggest challenge क्या था जब आपने start किया था? As a obviously you are in student age and 21 is no age. We are just अभी आप career का start करते हैं, बहुत चीज़ें mind में होती हैं. तो आपको सबसे ज़्यादा biggest challenge क्या face किया और जिसके ऊपर आपको लगा कि यार अब मैं जो है ना काफ़ी ऊपर मतलब growing stage है home shopping.pk की. सो यार, आई थिंक एक ऐसे बिजनेस के लिए जो कोई अपने पैशन को फॉलो करते हुए स्टार्ट करेगा, जिसके पास कोई पैसे नहीं होंगे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होएगी, तो सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि पैसे खत्म हो जाते हैं. जी. बिजनेस आपका जो है वो अर्ली स्टेजेस में होता है, ट्रैक्शन होती नहीं, कस्टमर्स होते नहीं आपके पास, पर आपकी बड़ी बड़ी उम्मीदें होती हैं कि जी आप ये भी करेंगे, वो भी करेंगे. सो आई थिंक सबसे ज्यादा जो चैलेंज रहा है, आई थिंक इनिशियल डेज में एटलीस्ट ज्यादा, वो यही होता था कि एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हम लोगों को परफॉर्म करना होता था. थोड़ा सा हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी ये थी कि उस टाइम पे, क्योंकि ई कॉमर्स का एज सच कोई था नहीं उस टाइम पे ट्रेंड, तो कोई मार्केट कर नहीं रहा था. नया नया फेसबुक मार्केटिंग स्टार्ट हुई थी, तो उसके ऊपर जो है $1 डालते थे तो जो आज राइट. $100 का इम्पैक्ट आता है, वो जमाने में $1 पे आता था. बिल्कुल तो बिल्कुल. अर्ली हमने फेसबुक मार्केटिंग को प्लस ऑफलाइन जो है कस्टमर हमारी तरफ आ जाए. तो दो तीन चीजें हमने देखी यार. एक तो कस्टमर जो है आजकल का वो चाहता है रिटर्न पॉलिसी और ये और वो और सारी चीजें जो बाहर राइट. दुनिया में वो दिखता है. तो हम जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा
देते हैं। Hello, Shan. Sorry, जी, it's disconnected. Can you please राइट। a little bit repeat? So, Yeah, so in terms of understanding what the customer really wants, I think उससे हम लोग को काफी traction मिली। Early days में हमारे उन दिनों में हमने ये देखा यार customer क्या आजकल trend कर रहा है। We realized कि उस जमाने में BlackBerry का दौर start हुआ था। जी, तो हमने काफी ज्यादा फोकस किया BlackBerry के ऊपर और हम एक होल एंड सोल BlackBerry सेलर्स जो है फोकस तरीके से होम शॉपिंग पे सेल करना शुरू किया, जिससे हमें बहुत पेनिट्रेशन मिली। right, हम right. लोग जो है टेल्को की प्राइसेस को compete कर रहे थे। बहुत सारे लोगों को ब्लैकबेरी हमने सेल किया। एक अर्ली एडॉप्शन जो हुई थी लोगों की वो ब्लैकबेरी की वजह से हुई। फिर जैसे जैसे एंड्रॉयड आया तो हम उसमें भी जंप इन करे। सबसे पहले डिवाइस को मंगाना, एक वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट करना। HTC गूगल सबसे पहले Yes, sir. आया था। गूगल एंड जो जो वो सारे एक जर्नी थी आई थिंक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की। उसके साथ साथ हम लोग जो है उसको रन करते रहे। उस वो जो ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स आते थे उनकी उनकी हाइप के ऊपर हम अपने आप को जो है वो कैपिटलाइज करते हुए अपने ब्रांड को बिल्ड करते थे। And that's pretty much how home shopping went on to become a brand, because usually product launches और इस तरह की चीजों से एक अच्छा बड़ा positive word of mouth जो है क्रिएट होता है। जी, right. So, as you mentioned, अच्छा इनिशियली हमें एक टीम चाहिए होती है किसी भी प्रोडक्ट को स्टार्ट करने के लिए। किसी भी स्टार्टअप के अंदर हमें वी कैन नॉट डू इट अलोन। सो व्हाट वाज योर प्रोसेस ऑफ चूजिंग पार्टनर्स एंड इनिशियल वर्कफोर्स? मतलब कि आपने कितने लोगों से स्टार्ट किया और उसके अंदर क्या आपको चीजें फेस करने को आई? यार पहले तो आई थिंक यू नीड टू सेट योर माइंड कि आपको सब कुछ करना होगा इस कंपनी के अंदर। ठीक है, इफ यू आर द फाउंडर देन देयर इज नो सच थिंग एज कि यार मैं उस एम्प्लॉय को हायर करके उससे वो ये चीज करवा लूंगा। हम्म, राइट, सो यू हैव टू बी द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर पीस, बिकॉज कल को इफ समवन एल्स doing it, you would at least know what he's doing, or he's not taking you for a run. And I think it's extremely important. So founders को accounts में, finance में, सारी चीजों में involved शुरू में, he's the only employee of the company. When he's in the ideation process or when he is the initial execution process, तो उसमें उसका कोई एम्प्लॉय नहीं होता। वो प्रॉब्ली अफोर्ड भी नहीं कर सकता, वो अपने एग्जैक्टली। आप को ही अफोर्ड कर ले, बड़ी बात होती है। सो but as you have some level of revenues coming into the business, cash flows आ रहे हैं आपके पास, कुछ certain amount of trade आपकी I would say initiate हो गई है, I think that's a good time जब आप अपना पहला employee, और हमारे केस में भी यही हुआ था। मेरा फर्स्ट एम्प्लॉय पहले 2-3 महीने तो जरूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज ऑर्डर ही नहीं इतने आते थे। मतलब अगर महीने के लेट्स से 5 ऑर्डर आ रहे हैं या 10 ऑर्डर आ रहे हैं तो वो तो मैं खुद जाके कर दे देता था। राइट, सो आई डिडंट नीड एन एम्प्लॉय। सो टिल दैट वेरी पॉइंट where it wasn't being possible for me to go to deliver, उस टाइम तक राइडर नहीं हमने रखा। and I think अच्छा, that was the logical way to go about it, because अगर आप पहले दिन ही सेट बन गए तो फिर तो आपका कुछ नहीं हो सकता। राइट, so you have to get your hands dirty, and at some point in time your business will tell you कि अब वो टाइम आ गया है जब आप इसको रख सकते हो, उसको रख सकते हो। तो हमारी केस में हमारा राइडर जो था वो भी पार्ट टाइम पे, वो कहीं और नौकरी करता था, दोपहर 3 बजे के बाद से वो हमारे पास आता था, और उसके वजह से हम कम सैलरी देते थे उसको, और वो हमारे जो ऑर्डर हम सुबह से 3 बजे तक तैयार करते थे वो 3 बजे लेके जाके शाम तक कंप्लीट कर देता था। तो इस तरह के रिलेशन में पहले राइडर आया, फिर जैसे जैसे कुछ थोड़ा बहुत बिजनेस बनना शुरू हुआ तो फिर लोग जुड़ते गए। ऑपरेशंस में लोग चाहिए होते थे, प्रोसेस के लिए, अकाउंट्स में करते कराते 100 लोग से ऊपर चले गए। एंड नाइस। इसी तरीके से जो है लोग आते हैं जाते हैं, बट ये कि डिपार्टमेंट्स बन चुके हुए हैं, काम काफी हद तक डेलीगेट हो चुका हुआ है, क्योंकि 10-12 साल हो गए हैं। सारे प्रोसेस, सारी काफी सारी चीजें, एटलीस्ट जो हमारा एग्जिस्टिंग स्केल है उसके मुताबिक तो सारी चीजें एक कंफर्टेबल सिचुएशन में है। तो कुछ सालों से आई एम क्वाइट
कंफर्टेबल बिकॉज सारी चीजें डेलीगेट हो चुकी हुई हैं, सारे अपने अपने फंक्शंस हैं, एम्प्लॉइज हैं जो अपना रन करते हैं। I must say hardships pays off. हाँ, इट डज एब्सोल्युटली, बिल्कुल। ये तो हर किसी के केस में आप कोई आप भले स्टूडेंट बिरयानी का एग्जाम्पल देखें या किसी का भी देखें, स्टोरीज सुनी है, बचपन से ये सुनते आए हैं कि जी ठेला था और अब बहुत बड़ी Exactly. बिल्डिंग हो गई। आप इम्तियाज सुपर स्टोर हो गया, उनका भी एक दुकान थी इम्तियाज के, अब मल्टीपल स्टोर्स हो गए। तो ये इन लोगों ने मेहनत सब ने की होती है, जो उस टाइम पे कोई भी नहीं जानता, वो अपनी मेहनत करते रहते हैं, बट उसका इवेंचुअल एक इम्पैक्ट बनता है काफी बड़ा। Hmm. So, Shayan, let's move to our next question. If anyone looking to start business in Pakistan related to e-commerce or in general any business, तो किन aspects को उसको consider करना चाहिए? और जैसे आपने mention किया कि you are the only employee जब आपने start करना होता है और आपको हर चीज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनना पड़ता है, तो आप कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स बताएं जिनके ऊपर हमने अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो तो उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए जनरली फॉर स्टूडेंट्स एंड यंग एंटरप्रेन्योर्स। यार मेरी सिर्फ एडवाइस ये होगी, अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज ये है कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं करना हम्म हम्म चाहिए, बिकॉज पैसे कमाने के बहुत और तरीके, बहुत आसान तरीके होंगे। आपको बिजनेस ई कॉमर्स का हो या किसी भी चीज का हो, आपको वो करना चाहिए जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो, हम्म बहुत ज्यादा आपको शौक हो वो करने का। हम्म मतलब आप फिर ये ना कहो कि यार मैं करके थक रहा हूँ, ठीक है, हम्म बिकॉज अगर आप ये करके थकते हो तो फिर आप थक जाओगे, बहुत जल्दी थक जाओगे, बिकॉज बहुत मुश्किल होता है एक इफ इस कंपनी को बनाना, बिल्ड करना जो है, और उसको चलाना और लॉन्ग टर्म तक चलाना बहुत मुश्किल होता है। मतलब बहुत रिसेंटली तक ऐसे टाइम गुजरे हैं जब हम रातों को रोए हैं। सो ये सारी चीजें बड़ी नॉर्मल होती हैं एक एंटरप्रेन्योर के लाइफ में। सिचुएशंस अप एंड डाउन होती हैं, काफी ज्यादा प्रेशर भी होता है, एंड उनको डिलीवर करने में you have to work out of your skin. So all I'll advise is, until unless you very passionate about the cause कि आप कर क्यों रहे हो ये, ठीक हम्म है, क्या वो ऑब्जेक्टिव है जिसको आप अचीव करना चाह रहे हो, जो आप कर रहे हो उससे क्या फायदा हो रहा है, हम्म जब तक आपको अपना विजन वो क्लियर नहीं है ना कि आप ये क्यों कर रहे हो, व्हाट्स द व्हाई, आई थिंक व्हाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम्म You should not at all get into it thinking कि यार ये बड़ी अच्छी चीज है, सब स्टार्टअप कर रहे हैं, सब जो है हम भी कर लेते हैं। आप हम्म फेल हो जाएंगे, आप ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, एक दो साल अपना फजूल में जाया ही कर देंगे। इससे बेहतर है आप कहीं अच्छी जगह पे नौकरी करके अपना टाइम कहीं ग्रो कर लेते हैं। बट इफ यू रियली फाउंड समथिंग विच यू रियली पैशनेट अबाउट, एंड आप हम्म कहते हो कि हाँ यार ये मैं सारी जिंदगी कर सकता हूँ और मैं थकूंगा नहीं, then just get into it and keep focusing on what you're trying to do. और चीजें होती हैं फिर आप नोटिस करोगे, when you're something very passionate about और आप 12-12 घंटे उस चीज के बारे में सोचते हो, तो you will see magic happen around you, right? Things will start happening for yourself. आपकी चीजें होना शुरू हो जाएंगी, and this is how, this is what most entrepreneurs have probably said over and over again, yes. where things do happen for you when you're really passionate and you're going after things, and you really want to achieve something, you do eventually achieve it, right? It's just a matter of time. You just need to keep focused कि जी मैंने जब तक जान है ये करता रहूंगा, and one day I will crack this, right? So you kind of make it into a mission of yours. So So I think that is very important, and then you can achieve anything pretty much. consistency is the key here and obviously hard work. Yeah, so the minute you wake up, if you cannot think of that vision or your mission or what you want to achieve today around that particular thing, then you're probably not passionate enough. So once you found that, then go for it, then try to make a difference within that particular segment. Okay, Shayan, so next thing related to your product, आपकी जो ये homeshopping.pk है उसके ऊपर आपने क्या इस पेंडेमिक के अंदर क्या ऐसा सिग्निफिकेंट चेंज दिखा है और उसका आपके बिजनेस के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है या नेगेटिव इम्पैक्ट आया है?
हाँ, सो यार जो हमने मेन चीज चेक करी, जो जो हमने डिफरेंस मेजर हमें नजर आया, वो था कन्वर्जन रेशियो इंक्रीज हो गया। ठीक है, हम्म और वो कन्वर्जन रेशियो इंक्रीज होना जो है वो मेट्रिक पाकिस्तान में अभी काफी कम होता है कन्वर्जन रेशियो बाहर की हम्म दुनिया से। बाहर की दुनिया में एवरेज कन्वर्जन रेशियो चल रहा है तकरीबन 4% होता है ई कॉमर्स और का। तो हम्म पाकिस्तान में रिलेटिवली कम होता है, हम्म स्पेशली हमारी हाई वैल्यू आइटम्स होते हैं तो और भी थोड़ा कम होता है। बट जो हमने देखा 3 times इंक्रीज इन कन्वर्जन रेशियो आया, हम्म और दैट्स अ वेरी ड्रामेटिक इंक्रीज, जिसकी वजह से 3 times इंक्रीज इन ऑर्डर्स भी हो गया विद द सेम अमाउंट ऑफ ट्रैफिक। राइट, सो ट्रैफिक एक्सेप्शनली इंक्रीज नहीं हुआ हमारा, बट ऑर्डर्स इंक्रीज हो गए। तो जस्ट टू इंटरप्ट यू, बेसिक इसकी वजह से आपको आउट ऑफ स्टॉक की प्रॉब्लम आई? काफी चीजें मैंने देखा ई कॉमर्स स्टोर पे, काफी लोगों की ये कंप्लेंट्स थी कि आउट ऑफ स्टॉक बहुत ज्यादा गई हैं चीजें। सो आउट ऑफ स्टॉक की प्रॉब्लम्स क्यों आई, पहले ये देखते हैं। वो इसलिए कि आपकी जो बैकएंड पे सप्लाई चेन है वो सारी डिस्टर्ब हो गई कोरोना हम्म के बाद। बहुत सारी ई कॉमर्स स्टोर्स थी जो अपने बैकएंड पे जो वेंडर्स हैं उनको बंद ही नहीं कर पाए, हम्म उनके प्रोडक्ट्स लगे रहे। उन्होंने कहा जी कोरोना अभी कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा तो हम ऑर्डर की डिलीवरी देंगे वो आफ्टर कोरोना या आफ्टर लॉकडाउन। ठीक है, हम्म तो कुछ स्टोर्स हैं इस तरह के, वो लोगों से ऑर्डर लेना शुरू कर दिए, पैसे भी लेना शुरू कर दिए कि जी अभी अभी लॉकडाउन खत्म होगा डिलीवरी हो जाएगी। तो वो जब खुला तो पता चला कि जी ये लॉकडाउन मतलब खुलने के बाद भी, या लोगों ने जब बोला कि यार अब डिलीवरी दे दें लॉकडाउन खुल गए, उस टाइम पे वो ऑर्डर कैंसिलेशन पे चले गए। तो बिकॉज सामान नहीं था अवेलेबल उन प्राइसों पे, वो ऑब्वियसली दे नहीं पा रहे थे या जो भी है। हम्म तो उसकी वजह से काफी चैलेंजेस आए, बहुत से सप्लायर्स बंद हुए, तो लोगों ने अपनी चीजें प्रॉपरली अपडेट नहीं करी। हमारे प्लेटफॉर्म में इस तरह के कंट्रोल्स हैं बिल्ट इन, जहां हम लोगों ने सेलर्स को बंद किया। हमारे पास भी आती हैं गलतियां, ऐसा नहीं कि हम लोग के पास नहीं है, पर रेशियो काफी कम है। हम हम्म उसको 3 to 4% पे ले गए जहाँ कैंसिलेशन पे है। सो हम लोगों ने जो करा था वो ये था कि हमने अपने सारे वेंडर्स को ओवरनाइट बंद किया, पहले प्रोडक्ट को जीरो पे लेकर आए, और फिर हमने सेम उसी टाइम पे वी स्टार्टेड बिल्डिंग। जो हमारे टॉप 100 वेंडर्स थे उनको हम लाइव किया फिर से सेम नाइट, ओके अपडेटेड इन्वेंट्री जो वो दे सकते हैं, और वो कौन सी चीजें थी जो वो दुकानों से उठा के अपने घरों पे ले आए थे, हमने उनको कहा उठा के अच्छा आप घरों पे ले आए और हम आप हम्म लोग से घरों से पिक करना शुरू कर देंगे। उनको सप्लाई चेन फिर से खड़ी करनी थी। बिल्कुल तो वो सामान मान लेके घर चले गए, और फिर हम लोगों ने जो है उनको नेक्स्ट डे ओपन कर दिया। तो सारे स्टोर्स बंद थे, मेजर स्टोर्स बंद थे, हम्म और हम लोग ऑपरेट कर रहे थे ड्यू सही टू द हम लोग क्योंकि काफी सारे मास्क एसेंशियल गुड्स और इस तरह की चीजें सेल कर रहे थे, तो वी थॉट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी कीप आवर सेल्फ अप। बट ये कि ओवरऑल जो हम लोग देख रहे हैं वो यही है कि कोविड के बाद से कन्वर्जन रेशियो, लोगों की इंटेंट बहुत बढ़ गई है ई कॉमर्स के बारे में। पहले विंडो शॉपिंग प्राइस देखने शायद ज्यादा लोग आते थे, हम्म बट नाउ उसके बियॉन्ड जाके लोग कह रहे हैं यार ऑर्डर करते हैं। तो दैट्स सही द बिगेस्ट डिफरेंस। सही राइट। ओके सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने वेंडर्स की जिस तरह बात की, सो हाउ यू इम्प्लीमेंट योर प्रोडक्ट सोर्सिंग सिस्टम्स, लाइक यू आर डीलिंग विद डिफरेंट डोमेन्स, काफी ज्यादा डोमेन्स हैं, तो आप किस तरह जो है ये सारा मैनेज करते हैं? और जो इनकी पेमेंट्स होती हैं वेंडर्स की, क्या कॉन्ट्रेक्चुअल होती हैं या किस तरह से है इसका सिस्टम? यार सो हमारा क्राइटेरिया बड़ा बेसिक सा है, हम लोग कोई भी मिडिल पार्टी वेंडर्स को साइन अप नहीं करते। हम लोग सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स को या फिर शॉपकीपर्स जो होलसेलर्स होते हैं या इम्पोर्टर्स होते हैं, जो ओवरऑल रिटेल सप्लाई चेन का हिस्सा होते हैं, उन्हीं को सिर्फ अपने पास लेके आते हैं और उन्हीं को सेल करने का अपॉर्चुनिटी देते हैं। उसका फायदा ये होता है कि ऑब्वियसली गलत प्रोडक्ट कोई नहीं बेचता, सारी लिजिट चीजें होती हैं, कोई एक दूसरे को मोबाइल की जगह पत्थर डाल के नहीं देगा। ये सारे जो इश्यूज हो रहे होते हैं ये हम लोग जो है टोटली रिमूव कर देते हैं बाय वर्किंग विद सेलेक्टिव सेलर्स। हम अपने आप को एक क्यूरेटेड मार्केट प्लेस कहते हैं एज अपोज टू एन ओपन एंडेड मार्केट प्लेस जिस तरह बाकी प्लेयर हैं, लेट्स से। सो और हम समझते हैं क्योंकि हम इस मार्केट में, लोकल मार्केट को हम समझते हैं, हम ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, हम ज्यादा टाइम से काम कर रहे हैं। हम समझते हैं पाकिस्तान में ओपन एंडेड मार्केट प्लेस मॉडल इज नॉट समथिंग जो चल सकता है, बिकॉज मार्केट अभी इतनी मिच्योर नहीं हुई। एटलीस्ट सेलर साइड की जो मार्केट है वो भी बड़े अर्ली डेज में है। अभी हर बंदा चाहता है कि मैं वही
499 की जुराबें बेच दूं और टी शर्ट बेच दूं, या फिर वो चाइना से जो 2 आइटम मंगवाए हैं वो बेच दें। सो ये मार्केट अभी मेच्योर होनी है, जहाँ सेलर्स जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट रेंज, डिफरेंट कैटेगरीज में काम करेंगे। उस टाइम पे आई थिंक एक अच्छा टाइम होगा जब आप ओपन एंडेड मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करो मॉडल। बट अभी आई थिंक द ओनली मॉडल दैट कैन वर्क इन पाकिस्तान, एंड दैट इज द मेन रीजन हम लोग का एनपीएस स्कोर इज नंबर 1 इन पाकिस्तान, even comparing with the largest of service providers like Careem, Uber, और ये सारी ये भी e-commerce के उसमें आते हैं सेगमेंट में। So we have the highest NPS score in Pakistan, and that is only because of That's the nice. fact that we are managing the experiences, and the expectations, or we are kind of making sure that we are committing and living up to what we are committing to people. That's great. Okay, so my next question, time is little short here. So my next question is, what entrepreneurship में हमारी जो है हम usually हमें ये सिखाया जाता है इंटर यूनिवर्सिटीज में कि यार आपने जॉब ये वाली स्पेसिफिक जॉब करनी है, ठीक है, जॉब्स के ऊपर ज्यादा फोकस, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर कोई बात नहीं करता जी। मैं कह रहा हूँ अभी भी यही सिखा रहे हैं। हाँ जी, ये ऐसे ही है, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कोई बात नहीं करता, कोई उस तरफ जा नहीं रहा, ठीक है, जस्ट जॉब कल्चर। तो आपके ख्याल में क्या यूनिवर्सिटीज का रोल होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, इस चीज को प्रमोट करने के या लिए? देखो, यूनिवर्सिटी का जो रोल है ना वो आपको एजुकेशन देने का है, ठीक है ना। उससे ज्यादा उसका रोल अगर आप बनाओगे तो यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच। और हमारे जैसे मुल्क में आपको पता है एजुकेशन भी अगर यूनिवर्सिटी से मिल जाए तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है, एग्जैक्टली। राइट। सो वो लें और उसके बाद जो है वहां से आप ऑब्वियसली चलते बने, एंड डिसाइड खुद करें कि करना क्या है। बिकॉज यूनिवर्सिटी आपको ये नहीं बताएगी आपको किस चीज का पैशन है। यूनिवर्सिटी कभी भी ये नहीं बता सकती, पैशन आपको खुद ढूंढना पड़ता है। आपको खुद ढूंढना पड़ता है कि आपको किस चीज का शौक है। हो सकता है आपको शौक हो एक एक चाय वाला मतलब जगह खोलने का, इट डजंट हैव टू बी कि आपका शौक क्या है। मतलब यूनिवर्सिटी वाला तो आपको हमेशा बोलेगा जाए जी आपने जो है इस कंपनी के अंदर इस पोजीशन के ऊपर लगना है और वहां लग के आपकी 3 लाख रुपए सैलरी होगी। बट इफ यू आर वेरी हैप्पी ऑपरेटिंग दैट चाय वाला stall, and maybe you can make the same amount of money, maybe you can make a little less, but then you'll be much more happier as a person. एग्जैक्टली। आप खुश होगे ज्यादा। आप वो टाई पहन के रोज जाओगे वहां दफ्तर के अंदर और वो लाइफस्टाइल आपको पसंद नहीं आएगा। मुझे भी नहीं पसंद आता था। I wasn't never really a great student in school. सही है, I was one of the troublemakers kind of people. So but जब काम के ऊपर आए तो काम में एक्सेल किया, एंड एक्सेल करने के बाद जो है जो मेरी पोजीशन क्लास में फर्स्ट आता था, ही जॉइंड माय कंपनी। तो उसको मैंने ढूंढ के खास तौर पे हायर करवाया, बिकॉज बचपन में सुना था इस तरह की चीजें एंटरप्रेन्योर्स डूइंग। तो या हायर्ड हिम just as something जिससे I felt happy about it कि यार this guy used to come first in my class, so now he works for me. So entrepreneurs need to be very highly passionate about what they're doing. Money is a byproduct. आप मनी से भागोगे भी तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, वो आपके पीछे आ जाएगी, राइट। so but if you keep running after it, trust me, you'll never get it, right? But if you don't think about money and you start thinking about your passion, your objective, what you want to do, eventually you will see that it will result into you having a lot of money, right? But it should never in any way come in your vision, distort your vision. Shortcuts पाकिस्तान में बड़ा लोगों को जो एग्जैक्टली। है वो जुगाड़, शॉर्टकट्स और ये जो चीजें हैं सारी, ये अपनी एनर्जी किसी अच्छे तरीके से चैनलाइज करनी है कि जुगाड़ करें कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर करने में। कैसे अगले कस्टमर को खुश कर सकते हो उसमें जुगाड़, ठीक है। मतलब उसको उससे पैसे कैसे निकालने हैं उसमें जुगाड़ करके, पैसे सीधे तरीके से कैसे निकालने हैं वो, आई थिंक दैट्स द आर्ट, राइट। सो आई थिंक दैट आर्ट इज समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड, and eventually things do fall in place. Exactly. So Shan, I think we have short of time, so thank you very much. You have well answered our questions and all of our queries, so we really appreciate your effort and keep doing great things, and we really appreciate your product homeshopping.pk, and we wish that it goes beyond success.
बस आप शॉपिंग करते रहें और अपने फ्रेंड्स इंशाल्लाह। और सारा बता दें। ठीक है जी, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू शयान, अल्लाह हाफिज।